नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज बहुत गुस्से में सभी लोग हैं। मैं भी सुबह बहुत गुस्सा हो गई थी कि फार्म लॉस क्यों रिपील किया गया। मगर आई एम नॉट वन ऑफ दोज राइट विंग्स जो इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं, अब्यूज करना शुरू करते हैं। एक बात है, आज बहुत लोगों को देख रही हूँ लिख रहे हैं बार बार कि इलेक्शंस है। अगर मोदी जी इलेक्शंस को डरते थे तो फिर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता था। अगर मोदी जी इलेक्शंस को डरते थे तो ट्रिपल तलाक नहीं होता था, 370 भी नहीं होता था। तो मतलब कुछ तो रीजन होगा। या वी आर वेरी एंग्री, इट्स फाइन, we can be angry with some of the decisions, but that doesn't mean that we stop supporting our leader. मोदी जी हमारे लीडर कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। एंड आज तक मैंने तो कम से कम उनको कभी बिना कोई रीजन के कुछ करते हुए नहीं देखा। मैं गुस्से में आ गई थी, बाद में मुझे खुद को शर्म आया कि मैं क्यों गुस्से में आ रही हूँ। अगर मेरा फेथ है, एक ट्वीट देखा मैंने, either it is 100% or it is 0%. So I should not go into that. And today I have a panelist, and I think they also believe what I believe in. Surinder Taporia ji, namaskar. Namaskar. Welcome. Randeep Sisodia ji, namaskar. Welcome. And Sameer, welcome. सुरिंदर तपोरिया जी, आप लोगों को पता है, एक्स एमपी है, हमारे पहले भी सेशंस में आ चुके हैं, एंड he was an industrialist also. Now he stays in Puri. And Randeep Sisodia ji is the author of the book Modi 2019, How Did He Win Back 2019? And Sameer, he loves to be known as the common man, a supporter of Modi ji. Namaskar and welcome once again, all of you. नमस्कार ईशा जी। नमस्कार। नमस्कार। फर्स्ट क्वेश्चन दादा, मैं आपसे शुरू करूंगी। दादा, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। ज्यादातर लोग जो अहमदाबाद से बड़ौदा जाते हैं कार में, वो रास्ते में डाकोर में रुकते हैं, एक मंदिर पे। उस मंदिर की प्रिजाइडिंग डीटी कौन है, नहीं पता आपको? रणछोड़ जी। तो जब वॉर स्ट्रेटेजी में भगवान कृष्ण को भी वो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ी, तो और लोग क्यों नहीं करेंगे? जो चेस खेलते हैं, दे ऑल्सो नो कि यू हैव टू ड्रॉ बैक। इवन टू व्हाट वी आर वॉकिंग, वी डोंट रियलाइज, बट अनलेस योर हील pushes a bit back, you don't take a step forward. तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो you have to take that step. अब क्वेश्चन है क्या सिचुएशन? एक तो है we all don't have the data, information and from security agencies that the government has. But what appears is something on the border is happening, or there is a fear of something might be happening. Problem is taking place. Our activity is also increased in recent times, so some activity probably is taking place. Besides that, if you take a little look on the recent information that has trickled out, 17th November, NIA charge sheet against 7 terrorists in case of threatening extortion by Khalistanis. 2 days before that, long-term visas of 12 PIOs in Canada and OCI card holders cancelled for role in anti-India protests. So it is all building up. Again, last 10-15 days की बात बता रहा हूँ मैं आपको। US businessman दर्शन सिंह धालीवाल, again you can call him a खालिस्तान में भी होगा या जो भी हो, was returned from Delhi airport where he had just landed from Canada. He was not allowed to enter the country. स्पेन से जलंधर बोर्ड अमृत सिंह आए दिल्ली एयरपोर्ट में 21 अक्टूबर को. He was returned from the airport. So this is a culmination of all these informations coming to the government, of which we are all not aware.
तो उसका कारण भी मोदी जी को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य किया होगा. बट आई वोंट रूल आउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम मूवमेंट और सम सिग्नल्स coming from the LAC or LOC. I'm talking of China angle. Okay. Again, talking of local politics and connecting that, I have a feeling that this action is to ensure that Punjab again does not go back to 1980s way, which Congress and Rahul Gandhi are very much trying to do. Punjab being a border state, अभी अभी रिसेंटली कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइन करके बात करने लगे हैं. Probably he has also given some input on situation at the border or things happen in Punjab. तो गवर्नमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर उसको बैक करता है, तो मेरे ख्याल से उसका महत्व बढ़ जाता है. तो इन चीजों को लेके, बिकॉज मोदी जी इज नॉट अ पर्सन टू टेक ए हरिड डिसीजन और टू गेट रैटल्ड, तो मुझे लगता है कि इन कारणों से हुआ है. नो जर्नी इज एवर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. पिटफॉल्स आते हैं, बाएं दाएं घूमना पड़ता है. दिस इज वन ऑफ दैट मोमेंट इन आवर हिस्ट्री. तो अपने को सतर्क होकर रहना है, एंड वी हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट हु दीज एनिमीज आर and what we can do. Okay. Sameer, किसने आगे किए भी Dada, हाँ? May I ask a question to Sameer and come back to you? Yeah. Thank you. Sameer, I want to ask you, आज ट्विटर पे जो आउटरीच हो रहा है उसमें elections. What is your take on this? कि मोदी जी has done everything for elections. See, Ishadi, इसमें before I get on to your answering your question, I am very envious of Randeep ji. वो जैकेट पहन के बैठे हुए हैं, whereas I am sitting here with AC in full flow and 15 minutes ago I had an ice pack on my head. It's so hot out here. तो थोड़ी सर्दी ऑन कर दो आप. Sameer is in Mumbai. Mumbai, अच्छा, okay. It's unbearably hot right now here. But coming back to your question, Ishadi, देखिए इसमें elections एंगल जो लोग दे रहे हैं, देखिए यूपी में इसका मतलब I wouldn't even say honestly Modi ji had no increment. I mean the incremental gain, if any, would be negligible in UP because whatever has happened in over the period of time, योगी जी वैसे ही एक बहुत solid footing पे है, तो यूपी के लिए तो ये कुछ किया नहीं होगा. वैसे speculation जो हो रहा है, meetings between अमरिंदर सिंह and अमित शाह and other meetings, ऐसा करने से पंजाब में किस हद तक इलेक्टोरल गेन्स में ये ट्रांसलेट होता है वो तो समय बताएगा. ऑनेस्टली आई सी एट दिस पॉइंट ascribing motive to the decision is purely based on conjecture. और मैं for many of us, I'm not talking about the other panelists here who are probably more informed than I am. I don't think it's I have the capability to judge and decide, and I will wait and see how this decision eventually translates. But that said and done, I believe that Modi ji's instincts, his judgment, his overall perspective, the access to information, as Surendraji Dada said, is far greater than all of us collectively put together. So I would rely on that, not go with the flow, if you may say so, and just stay calm, and see what happens eventually. And as I said, people have a right to express their disappointment. Many of us have defended these decisions, लेकिन disappointment express करने का तरीका होता है.
आप मॉक करो, गाली दो, गंदे मीम्स बनाओ, कुछ लोग तो इस हद तक गिर गए कि मतलब दे हैव सेड आउस्ट हिम बिफोर 2024। किसी ने एक मीम कार्ल मार्क्स और मोदी जी का वो बड़ा दाढ़ी वाला फोटो साथ में डाली। दिस इज juvenile stuff. I mean, I don't even want to comment on those posts and get into a slugfest with such people, but expose ho rahe log, so let's hold on. I think time will tell. I'm sure there is there's got to be some reason. It may, or see, and as I said, decisions may always not turn out to be right, but do not doubt the intent behind it. The intent behind it is obviously in the best interest of the nation. That is what I said. Whether it turns out right or wrong in the long run, वो तो समय ही बता देगा. That's my limited point on this. Absolutely, you are absolutely right. Randeep ji, I'm coming to you. I want your take on the whole situation. Yeah, the outrage part we will do it afterwards, but let us know what is actually your take on this. So, Isha ji, I'll just start from where Sameer ji left. कि was PM sincere? Was PM's intent right? I think the answer is yes. Were the laws, जो laws थे हमारे, वो नेशन के फेवर में थे, नेशन के इंटरेस्ट में थे? Yes. और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लॉस थे वो फार्मर्स के इंटरेस्ट में थे कि नहीं थे? उसका भी आंसर है yes. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, अगर मोदी जी फिर भी अपोलोजाइज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनके झुकने से उनका कद बहुत बढ़ गया है। अब मैं आता हूं कि जो मेरा मानना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मोदी जी ने आज स्पीच में बोला और वो बहुत, आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत सही बोला, क्योंकि मैं इंसिडेंटली मैं पंजाब में हूँ, अभी मैं पंजाब में ही बैठा हुआ हूँ। और समीर जी जो बोल रहे थे कि मैं जैकेट पहनी है, एक्चुअली यहाँ बहुत सर्दी हो गई है और मुझे लग रहा है आज की अनाउंसमेंट के बाद माहौल थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो मैं शायद सर्दी मुझे टालना पड़ जाएगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, जो मोदी जी ने आज बोला कि एंड ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि वी फेल्ड इन कन्विंसिंग सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द, एंड आई थिंक ही इज वेरी राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ काफी देर से, मैं तो खैर यहाँ से मैं पला बड़ा मैं यहीं से हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत हद तक कॉमन मैन जो है, जो एक जाट कम्युनिटी है जो कि अराउंड 15-20% है पंजाब में, मैं देख रहा हूँ कि कॉमन जो ये कम्युनिटी है, दे वर गोइंग टुवर्ड्स सेपरेटिज्म, बट वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फीलिंग आ रहा था। कि आपने भी ईशा जी और हम सबने देखा था कि कैसे प्राइवेट कंपनीज के टावर्स को अटैक किया जा रहा था, बिजनेसेस को अटैक होना शुरू हो गया था, वो कॉमन मैन कर रहे थे। और इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि रिलायंस के और कुछ कंपनीज के जो स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वो बंद हैं, आज भी वो बंद हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा। और इसमें मैं कहूंगा कि बीजेपी का फेलियर टू द एक्सटेंट दैट बीजेपी पंजाब में बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी लीडरशिप का फेलियर रहा है लोकल स्टेट लेवल का, कि वी हैवंट बीन एबल टू कन्विंस, और दे हैवंट बीन एबल टू कन्विंस द पीपल। नाउ उसमें हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा है, जो आई थिंक दादा भी बोले, कि कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने भी एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया है इसमें। क्या हुआ कि आपको पता है, जब लॉज इम्प्लीमेंटेशन और लॉ जब ये इनेक्ट हुए, उससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने अंडर कमेटी बिठाई थी टू स्टडी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। वो कमेटी ने सजेस्ट किया था कि ये फार्म लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, अकाली दल सरकार में थी, वो सबसे डिस्कशन होकर ये फार्म लॉज प्रपोज किए गए थे और पास किए गए थे, लेकिन बाद में ये सब पलट गए। तो एक वो भी एक उसका भी इम्पैक्ट हुआ, वो नेगेटिविटी भी फैल गई पंजाब में। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ गए। अब लोग बोल रहे हैं कि करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया, बट द पॉइंट इज कि पहले ये धीरे धीरे सिचुएशन खराब हुआ है। और द थर्ड फैक्टर जो इसमें खराब करने वाला था, ऑब्वियसली जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री हैं, विच आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड फंड्स,
वो ऑब्वियसली वो तो वेट कर रहे थे, वो तो इंस्टिगेशन कर ही रहे थे। और इसमें ऐड टू दैट बॉर्डर स्टेट है, जैसे दादा भी बोले, पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट विद पाकिस्तान है, तो वो तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेपरेटिज्म के डर से, बिकॉज सी मैं समझता हूँ कि भारत देश आज की डेट में जैसा हमारा नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है, हम सक्षम है कोई भी एक्सटर्नल ताकत और कोई भी सेपरेटिस्ट फोर्स अगर हम पे अटैक करेंगे तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बट आई थिंक और मुझे जो फील हुआ जो मोदी जी के स्पीच से था कि अगर कॉमन मैन भी अगर एंटी इस लॉ के इतना हो रहा है कि वो भी उनको मतलब दे गेटिंग inclined a bit towards anti-establishment, so that was a concern. And even though it's a small state, I think जैसे मैंने कहा झुक जाने में, चाहे वो 20-25% ही पॉपुलेशन हो, बट 20-25% पॉपुलेशन अगर डिससेटिस्फाइड है तो वो छोटी पॉपुलेशन नहीं होती है एक स्टेट की। तो आई थिंक वो देखते हुए भी ये डिसीजन लिया। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि हम बात करते हैं, हमने अभी बात की चैलेंजेस क्या थे, बेनिफिट जो इसमें क्या आ रहे थे। अब आप देखिए ईशा जी, आई थिंक वैसे तो एग्रीकल्चर में वो जो किसान निधि है वो तो दे रहे हैं, बहुत सारे और रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे कि बीमा योजना का है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स दे रहे हैं, तो ऐसे काफी हद तक रिफॉर्म्स हुए। बट इवन जो 2-3 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो किए गए हैं, जो अंडर द रेडार चले गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज जो हुई है इसी साल, वो हुआ था, अगर आपको याद होगा, डायरेक्ट पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट्स गोइंग डायरेक्टली टू द फार्मर्स। एक ये बहुत बड़ा अब आप देखिए कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था सभी फार्मर्स को और किसी को भी था, वो था मिडिलमैन से लेके, कि मिडिलमैन है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मुनाफा कमाते हैं। तो वो सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो उसको कंट्रोल करने को ऑलरेडी ले लिया है, जो फार्म लॉज आए ना आए वो हो चुका है, वो है कि एक तो डायरेक्ट पेमेंट जाएगी किसान को, विच मीन्स कि आगे आड़तिया पैसा देता था किसान को, अब वो डायरेक्ट जा रहा है, इसलिए वो जो है वो जो कट मनी का है एक तो गुंजाइश वो खत्म हो गई है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सरकार ने करी है वो है कि एमएसपी जो परचेज पे सिर्फ उसी क्रॉप का दिया जाएगा जो आपकी लैंड होल्डिंग के प्रोपोर्शनेट है। ये बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिफॉर्म जो फार्म लॉज का था वो ये है, वो सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। हालांकि इस बार वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इस बार वो करने वाले थे, बट सरकार ने बोल दिया कि चलो, क्योंकि सबसे ज्यादा पुशबैक इसी पे था। अब मैं समझाता हूँ कि एक ऐसा ये नुकसान क्या है आड़तियों का। आड़ती पे अब आप भी जानते होंगे कि जो वीट की और राइस की प्रोडक्शन है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वीट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है, बट प्रोक्योरमेंट पंजाब में हो रहा है सबसे ज्यादा। तो क्या हो रहा था कि जो प्रोड्यूस है वो मध्य प्रदेश से पंजाब में जा रही थी और वहां वो आड़तिया पैसा कमा रहा था मंडी सिस्टम के थ्रू। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको पंजाब में आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपकी लैंड प्रोड्यूस कर सकती है, विच मीन्स टू से कि अगर आप प्रोपोर्शनेटली आपकी सपोजिंग लैंड 1 एकड़ है, लेकिन आप अगर राइस लेके आ गए आई डोंट नो 50-60 टन, तो वो आपको पैसा नहीं मिल, जो कि हो रहा था क्योंकि बाहर से जो राइस आ रहा, सॉरी वीट आ रहा था, वो यहाँ पे आके बिक रहा था। तो क्या होगा कि ये सब जो है एक स्टेट से वहां पे पंजाब में आके वो बिक्री जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके लिए आई थिंक जो और स्टेट्स भी हैं उनको अपना मंडी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो मेरा जो जहां तक मेरा ख्याल है, आई थिंक और स्टेट्स हैं जैसे एमपी है, यूपी है, वो अपना मंडी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि जो है किसान को, यूपी के किसान को पैसा वहीं पे अच्छा मिल जाए, वहीं पे एमएसपी मिल जाए, एमपी के किसान को वहीं पे एमएसपी मिल जाए। तो ये ऑलरेडी जो है अंडर द रेडार जो रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो एक आरटीए को और मिडिलमैन को कंट्रोल करने के हैं, वो ऑलरेडी रिफॉर्म्स हो ही रहे हैं।
तो मे बी मोदी जी रियलाइज के फिर जब हमने जो की रिफॉर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर गिवन द फैक्ट जो हमने और सब डिस्कस की in terms of anti-establishment, in terms of being a border state, there are sensitivities, and the fact that लोग at पंजाब level में थोड़ा anti हो चुके थे, तो I think maybe decision was made that let us repeal those reforms. So, I have a question. I have a question, Randeep जी. अगर आप जैसे बोल रहे हो कि ऑलरेडी वो सब शुरू हो गया, will the repealing of the laws take back these things? नहीं वो नहीं होगा. They continue. I have one more question for Randeep ji, since he's quite knowledgeable about this. अभी will states, let's say hypothetically states जो बीजेपी के अंडर हैं या जो फार्म लॉज के सपोर्ट में थे, they can independently pass the laws in the state assembly and implement them, right? So yes, that's the very point. The agriculture is basically a state subject. State right? subject, correct. तो ये सब स्टेट लेवल पे हो सकता है. So in fact, remember समीर जी, जब लैंड एक्विजिशन बिल पास नहीं हुआ था पार्लियामेंट में, तो स्टेट्स वर गिवन एन इंडिपेंडेंट a go ahead that if they want they can implement it at local level, at state level. तो उसी हिसाब से जो मुझे लग रहा है, ये that will be the next step wherein states will then be empowered to come up with their own farm laws. I think Karnataka में there is already something done in this regard. येदियुरप्पा साहब ने before he handed over the reign, उन्होंने ऐसा कुछ legislation enact किया था मेरे ख्याल से कर्नाटका असेंबली में. I'm not very clear on what it was, but it was done there, if I'm not mistaken. You are absolutely right. और साउथ में तो actually private organizations बहुत काम कर रही हैं इन चीजों पे. In fact, you will see there are a lot of retail shops or warehouses run by private people. In fact, मजेदार बात है, ironically contract farming पंजाब में भी है. तो पेप्सी है, पोटैटो जो. और आपको याद होगा वो वीडियो जो वायरल हुआ था with the meeting of the Reliance head Ambani with Amrinder ji, where they were talking about contract farming and they had inked a deal. This was much before the farm laws were put in the put up in the. बिल्कुल. और अडानी तो मंडीज रन कर रहे हैं, मतलब obviously they have been outsourced, but private sector is already there. The point is private sector is already there even in our places. Even Patanjali also has contract with lots of farmers. तो एलोवेरा वगैरह के लिए वो तो हमको भी पता है. यहाँ पे अभी हम जो कॉटन का भी देखते हैं, तो एंड हमारे यहाँ पे एक और चीज जो होता है वो यूकलिप्टस ट्री वगैरह का जो है, बलाशाह का जो हमारा पेपर मिल है, तो वहां पे भी वो लोग फार्मर्स ऐसा कर रहे हैं. तो मुझे तो समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा था. दादा के पास आने के पहले मैं समीर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. ये जो टिकायत अभी बोल रहे हैं कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ, now what is he trying to do and what is he going to achieve? See this abhi there are two इसमें दो perspectives लोग I was trying to look at it. कोई कह रहा है उसकी दुकान बंद हो गई, कोई कह रहा है उसकी दुकान अब शुरू हो गई है. See, he is posturing because obviously he's seen a new model in over the last 18 year and a half जो बहुत बढ़िया उसने कमाया होगा या कमाई होगी उसकी. So he's probably posturing for something in the forthcoming elections, because he believes he's got a captive vote bank which he can transfer somewhere. तो अक्सर यही होता है कि आप सबसे विनेबल कैंडिडेट को से पहले बोली लगवाने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ पोस्चरिंग तो कर ही रहा है वो. वैसे तो ही इज ऑलवेज बीन वेरी शैलो, बट
उसका आंदोलन चलते रहा है. So we have to figure out. But मेरे हिसाब से it is pure posturing. अभी आंदोलन से तो सारी हवा निकल गई. जब फार्म लॉज है ही नहीं तो वो किस बात का, मतलब nobody is going to believe him, you know. So I think his aim is to all in कर गया अभी, to cash in on whatever little leverage he has before all of this fizzles out, because the eyes are on UP elections and Punjab. Uske baad to khair, for some time there is nothing else that he can perhaps leverage on. I could be wrong. सुरेंद्र जी can perhaps add some. सुरेंद्र जी, दादा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. ये अभी आपने ट्विटर पे भी देखा है, आउटरीच शुरू हो गया है, सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, तो सीएए भी वापस लीजिए, 370 भी वापस लीजिए. I want your take on this. What is this going on? ये कुछ नहीं है, ये जो लोगों के मन में लगा कि सड़कों पे करके हल्ला आप गवर्नमेंट को वापस रोल बैक करवा सकते हैं चीजों में, तो मांगे. जो ट्विटर वगैरह पे आया है, दे आर मोर एज ए लाइक ऑफ सजेशंस कि ये भी मांगेंगे कि इसको भी रोल बैक करो, उसको भी रोल बैक करो. तो इतना कोई कर पाएगा मुझे डाउट लगता है. वो सोचते हैं कि अचानक मोदी जी बहुत वीक हो गए हैं, अब कोई भी चीज हम सड़क पे मनवा लेंगे. एंड वी नो द एंटायर ऑपोजिशन तो एक तरफ में है, तो ओनली बीजेपी वर्सेस ऑल. और वो लोग कोई न पॉलिसी की बात करते हैं न कोई मॉरलिटी से बात करते हैं, तो उसके लिए संभल के रहना पड़ेगा. लेकिन कुछ होगा नहीं उसमें. जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने टिकायत की बात की थी कि वो तो हम कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू क्या करेगा? क्योंकि अभी भी उसको लगता है कि कुछ पैसे कांग्रेस से या खालिस्तानी रूप से जो बाहर से आ रहे हैं उसमें कुछ मिल सकता है. उसने कहा ये हमारा एमएसपी का बंद नहीं हुआ है, एमएसपी का डिसाइड करना बाकी है. तो इस तरह करके कहीं ना कहीं वो बात पकड़ के रखेंगे. दे वांट टू क्या बोले, पूरा निचोड़ निकालना चाहता है कि बिफोर वी शट द शॉप हियर, जितना निकाल सको निकाल लो. That's how I see. Yes, ईशा जी, ये ट्विटर की जो डेमोग्राफी है उसके पीछे भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है. इसमें there are a lot of youngsters who have large followings and are influencers. They perhaps are a little less patient than some others who have probably seen more seasons, and many of them have been very strong in support and defense of these laws and fight counter opposition claims. उन्होंने बहुत जोर की टक्कर दी है ऑपोजिशन लेफ्ट लेलीज को, तो उनका कुछ हद तक डिसअपॉइंट होना जायज है. एंड सम ऑफ देम परहैप्स डोंट हैव द रिक्विजिट age or I wouldn't see maturity is too strong a word, but patience to keep calm, and they've probably given vent. So as I said, expressing disappointment, displeasure doesn't mean withdrawal of support, or it's a matter of time. As I said, कुछ समय बाद अपने आप मतलब कुछ और अच्छी चीज होगी तो they will come back. And it's just, और ट्विटर ऐसा एक अनकंट्रोल्ड सोशल मीडिया है जहां पे everyone wants to fit in. You see, the moment the news leaks, there one or two influencers drop one line, disappointed, master stroke, and everyone wants to ride that and have their 2 minutes of massive RTs. और अच्छा लगता है, notifications आ जाते हैं TL पे. I'm not again ascribing motive. Many of them are genuinely disappointed, but generally tendency ये है कि to go with the flow. तो कुछ लोगों ने, बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने शुरुआत कर दी और कुछ लोग उसके साथ फ्लो हो गए. बाय द टाइम सम अदर्स रियलाइज्ड इट एंड अदर काउंटर व्यूज और मोर रैशनल पेशेंट व्यूज केम आउट. ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु सपोर्ट दोज व्यूज आल्सो. So ये तो थोड़ा सा, I think it's the younger, see 20 years back maybe I would have also reacted the same way. ये क्या हो रहा है यार, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते. वो तो 26 जनवरी को ही तोड़ना चाहिए था सबको. those it's all about the Josh, younger blood that runs through. I'm not an old man, but
Bobby G is the youngest amongst us right now, but he's so patient, so but ये एक मुद्दा है. But the real challenge comes when some people give out the real motive. मतलब they कहते हैं ना, Modi should be ousted, Yogi should lose. That's when they will learn a lesson. Arey bhai, who will learn a lesson? We learned a big lesson for 10 years when we let go of Vajpayee, and 2004 to 14 was arguably the darkest decade in Indian politics, pretty close to what Indira Gandhi's rule was. But कौन समझाएगा इनको? कुछ लोग तो कहते हैं इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी मूवमेंट कर्व कर दिया, देखो कैसी शेरनी थी. They weren't even born when this happened यार. अभी उनको क्या बताएं कि the mess was created by her. But there are such thoughts also that surface on Twitter. But इनको सबको react करना, respond करना, they will calm down. The younger generation is a little upset. They want to see a more 56 Modi ji right now. ठीक है, time is a great healer, Isha ji. That's what I think. फिर थोड़ा ओके दादा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आज हम देख रहे हैं बहुत सारी आउटरीचिंग हो रही है, एंड जैसे समीर ने बोला है कि पीपल आर गोइंग ओवरबोर्ड. जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है, हम हमेशा उनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं. आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों को कि भाई लाइक समीर सेड, लाइक रणदीप जी सेड कि थोड़ा सा शांत रहिए, एंड isn't it time now to believe in the leadership, or is it time to create ruckus that he should be removed and all that? नहीं, आपने जो सही कहा कि एकदम शांत रहने की जरूरत है. Nothing to get excited about it. There is no change in Modi ji's policies or the government's policies. जो था वो काम आगे होगा. यदि कोई रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कभी आपको एक कदम रुकना पड़ता है, 2 मिनट का समय लगता है, कभी एक बार एक कदम पीछे भी खींचना पड़ता है, तो वो कर लेना चाहिए. डेमोक्रेसी है. यू डोंट हैव टू रन ओवर एवरीबॉडी और राइड रफ शॉट. तो एक आदमी तो भला कर रहे हैं, इसको वीकनेस क्यों गिनते हैं? वो नहीं कुछ कर रहे थे तब भी इनको फासिस्ट कहा जाता था, डिक्टेटर कहा जाता था. तो इस तरह यदि वो रफ शॉट राइड करेंगे तब तो शायद इनके चित्रे फाड़ देंगे ऑपोजिशन वाले लोग. तो आई थिंक ही इज ऑन द राइट ट्रैक, एकदम सही कर रहे हैं. और आपने जो उनको लीडर माना है, जो कि सबों ने मान रखा था, तो मैं तो कहता हूं ये उन लोगों पर रिफ्लेक्ट करता है जो 1 मिनट में एक सेंटेंस के कारण उनका फेथ डिगमगा गया. भाई अपने आप को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है, गलती कर दी, मोदी जी हट जाएंगे, कौन आएगा, कौन आपको उस तरह कुछ रख पाएगा? विल राहुल डू दैट? विल ममता विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट मोदी इज डूइंग? तो ऐसा कोई एक्शन लेने के पहले आप ये भी सोचिए, हु एल्स, किसके सामने, किसके पास आप जाओगे? तो कोई दूसरा आपके पास जाने का नहीं दिख रहा है, जो इनके 50% कैपेसिटी का भी नहीं दिख रहा है. तो फिर ये किस बात का गुस्सा? कभी आपने लेडीज में झगड़ा नहीं देखा आपस में? कभी आपने कम्युनिस्टों में नहीं देखा कि आपस में झगड़ा लेके? ये अपने लोगों में क्यों होता है कि 1 मिनट में अपने रोजगार दे देते हैं, 1 मिनट में अपने इमोशनल हो जाते हैं, 1 मिनट में अपने किसी को अच्छा या बुरा बताते हैं? हैव यू एवर हर्ड वन say Yechuri criticizing another CPM leader or somebody from liberals criticizing another? ये अपने लोगों में एक मेरे ख्याल से कमी है जो अपने को इस पे सोचना चाहिए. एंड इफ यू वांट टू बिकम अ फोर्स, तो अभी भी they are better and stronger on social media than we are. So this is something we have to do an introspection. Yes, DJ. एब्सोल्युटली दादा. रणदीप जी, जैसे सुबह आपको याद है आपने जैसे ट्वीट किया था, तो मैंने भी बोला था आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी एंग्री, एंड इमीडिएटली यू नो व्हाट केम इनटू माय माइंड दैट देयर विल बी पीपल हु विल कम टू माय डीएल and they will start telling you, no, we told you. And I did have people who came and said, we told you, but you were not ready to believe. But they did not believe one thing, that मैं कल भी मोदी जी को सपोर्ट करती थी, आज भी मोदी जी को सपोर्ट करती थी, एंड आई एक्चुअली डिलीटेड माई ट्वीट. तो मुझे खुद को भी, मैंने जैसे आपको बोला, आई डिलीटेड. तो रणदीप जी, आपने भी देखा होगा, आप तो काफी लोगों को आंसर कर रहे थे. आप क्या कहना चाहते हो लोगों को? व्हाट एग्जैक्ट
do you want to tell them, even me, for that sake? So, Isha ji, actually, I would resonate what Sameer said. और पॉलिटिक्स में ईशा जी जितना इमोशंस पे कंट्रोल रखा जाए उतना ही बेटर है. इनफैक्ट अगर आप पॉलिटिक्स में इमोशंस लाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. पॉलिटिक्स बहुत ही कूल हेड से प्ले करना होता है और पॉलिटिक्स में इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक. और इनफैक्ट एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक एरिया. इनफैक्ट आपने एक बहुत मशहूर अंग्रेजी की कहावत है, मैंने ट्वीट भी किया कि टू विन अ वॉर समटाइम्स यू हैव टू लूज अ फ्यू बैटल्स. तो ये उसी तरह है कि कभी एक और आर्म्ड फोर्सेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, उसको कहते हैं टैक्टिकल रिट्रीट. सो ये सब पॉलिटिक्स में भी प्ले आउट करता है. और जो मैंने कहा कि आप अगर यू हैव टू सी द लार्जर पिक्चर एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम खो बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं. इनफैक्ट देखिए, प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए फार्म लॉज में. इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था और मेरा भी ये मानना था कि ये तो कभी विड्रॉ होगा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट. ये आई थिंक हम सब जो है, दादा का भी यही, आई थिंक समीर का भी यही मानना था. तो हम एक इतना इन्वेस्ट हो गए इमोशनली कि जब ये विड्रॉ हो गया, अब ऑब्वियसली हमारे पास इतना सब इंफॉर्मेशन नहीं है. अब वो मोदी जी के पास है, गवर्नमेंट के पास है, पर हमारे पास नहीं है. उसके अभाव में ऑब्वियसली फिर ये चीज हिट बैक की. बट अगर आप ठंडे दिमाग से सोचिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वाज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो इसके एंटी थी विद इन पंजाब. हालांकि एक स्टेट, छोटे स्टेट में थी, बट ऑल सेड एंड डन दैट इज एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल स्टेट फॉर इंडिया. आप जो भी कहें, हालांकि छोटा स्टेट है बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल स्टेट. जहाँ पे 50-60% प्रिक्योरमेंट होता है एमएसपी का. सो फ्रॉम दैट पॉइंट एंड द फैक्ट दैट हम कुछ ऑलरेडी इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए हैं, दोज विल कंट्रोल द मिडलमैन, एंड द फैक्ट दैट इट्स अ बॉर्डर स्टेट. तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं. देयर आर दीज टूल किट गैंग्स जो इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान है. सो ऑल दैट एलिमेंट, ऑल दोज थिंग्स, मैं एक चीज नहीं, सभी चीजों को अगर आप देखा जाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी इन्फॉर्म्ड एंड अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन that they have made. Now, the point is, अब हाँ, क्योंकि इलेक्शंस थोड़े दूर हैं तो लोग कहेंगे, वो भी जायज है कि ये तो इलेक्शंस के करके हुआ है. बट द पॉइंट इज कि ये सब चीजें चल रही थी. सरकार भी आफ्टर ऑल इज मेड ऑफ पीपल. so we make mistakes, we learn through experience. तो जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ी, हम सीखते गए, हमें पता लगता गया कि कितना डीप रॉट है. और जब राइट टाइम आया तो फिर उस पर डिसीजन ले लिया गया. तो आई थिंक एंड मोदी जी का ये अब हाँ, लोग ताने मारते हैं, अब ताने पे बात करते हैं. तो ईशा जी, ये कोई पहली बार नहीं है. आप देखिए, जब मोदी जी पहली बार 2014 में आए तो 56 इंच के छाती के 2 साल तक ताने लगे उनको कि नवाज शरीफ को गले लगा लिया. पहले तो बोलते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर क्या हुआ, 2 साल बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो 56 इंच के वो ताने सब खत्म हो गए. तो आई थिंक इफ आई नो मोदी जी वेल, तो पहले काम प्यार से निकलवाने की पूरी कोशिश रहती है. अब दादा ने रणछोड़ की बात की, तो भगवान कृष्ण का भी यही था कि पहले वो प्यार से नेगोशिएशन से बात करते थे. बट हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो देन ही विल टेक अ टफ स्टैंड ऑल्सो. जो उन्होंने लिया है हमने देखा ही है. वो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, 370 हो. तो जो ये लोग बोल रहे हैं कि वापस ले लो, 370 भी वापस लो, आई थिंक वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं. मुझे नहीं, वो 370 और फार्म लॉज में जमीन आसमान का फर्क है. 370 पे देश की इंटेग्रिटी इज एट स्टेक. फार्म लॉ में जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चरल चेंजेस इतने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो गए, स्टेक नहीं है वहां पे, तो वो चले गए हैं. तो कोई इतनी बड़ी कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है.
अगर लोग ठंडे दिमाग से सोचें तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। आपने जो ये बात बोली है ना कि भाई नॉट टू मच इट इज एट स्टेक, एक्चुअली मैं आपके बातों से सहमत हूँ एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन समीर ऑन दिस दैट जैसे आपने बोला हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे ये इस लॉ के साथ एंड यू नो इनिशियली व्हेन वी हर्ड इट वाज काइंड ऑफ अ शॉक एंड as it was a reaction, एक्शन का रिएक्शन जैसे हम लोगों ने किया. बट समीर, आप लोगों को पता होगा नहीं, मगर आई हैव बीन वाचिंग समीर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ही इज वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर्स ऑफ मोदी जी. मतलब जब सभी लोग एकदम टूट पड़ते हैं, I have never seen Sameer tweet one thing negative about him. I always saw him saying that Shant Rao. So the next question, of course, is to you, Sameer. ये जो influencers जो बीच बीच में उठ के आते हैं, whom you counter all the time, what do you want to tell them today? I don't think I'm capable of preaching to anyone, because मैंने even आज के ट्वीट में मैंने यही कहा, सबकी अपनी अपनी सोच है और see it's a pattern. आप देखोगे तो जब सरकार को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हुई है, these people have backed out and in fact they have questioned the government by taking a position which the leftists would normally take. तो अब तो मैं मतलब I don't even think not all of them, a few of them who are the usual suspects, and उनको तो मतलब I think it's best to leave them aside, because many of them, I mean, they're all big influencers, but a lot of people are seeing through their motives over the last year or two. And Randeep ji has absolutely nailed it when he said the disappointment is always a reflection of the expectation. हम इतने ज़्यादा invest हो गए थे इसमें, believing that they will never be repealed. This news came, and often false equivalences are provided on social media to, जैसे अभी इन्होंने कहा वो अब ये किया तो 370 भी करो, वो जोश में लिख देते हैं, उसके बाद रात को जब सोने जाएंगे तो सोचेंगे अरे क्या लिखा मैंने. I mean, someone who has had an influence in my life always told me that if you want to type something or you want to type a letter or say something to someone, just take 10 minutes away, or maybe if it's in the night and you're angry, then sleep over it, and if you feel the same way the next morning, then go ahead and say. So it's a cliched sentence, but अक्सर वो हो जाता है. और सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो मतलब आपके हाथ में फोन है, आपने लगा दिया, कीपैड पे टाइप कर दिया, ट्वीट कर दिया, चलो तीर कमान से छूट गया. सो ऐसे इम्पल्सिव रिएक्शंस आते हैं बिकॉज वी वर इन्वेस्टेड इन इट. इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को दे विल कम बैक. आई विल टेल यू, अभी कुछ अच्छी चीज मोदी जी करेंगे तो सबसे पहले आर्टिस्ट खाने के लिए आ ही जाएंगे. क्रेडिट मुझे चाहिए. हाँ जी, क्रेडिट मुझे चाहिए. क्रेडिट लेने के लिए सब तैयार रहते हैं. When the chips are down, very few people will support. देखिए आज I have made my position clear. I am not qualified to comment on why it was done or whether it's a good decision or a bad decision. मेरे रिस्पॉन्स की बुनियाद हमेशा एक ही मुद्दे पे रहती है. I believe in Narendra Modi to act in the best interest of the nation. That decision may personally not be in my favor, or it may affect a certain section, because we are 130 crore people with different cultural identities, different levels of financial state, whatever you might want to say. So being Narendra Modi is probably the most difficult job in the world. कुछ लोग कहते हैं फैशिस्ट है, कुछ लोग कहते हैं स्पाइनलेस, कोई लोग कहते हैं इनको मौलाना, कोई कहता है कम्युनल हिंदू बिगट. तो ये इतने एक्सट्रीम्स फेस करते हैं, तो इट्स बेस्ट वो अपना काम कर रहे हैं. ही इज डूइंग हिज वर्क. हो सकता है इट्स अ टेम्पररी सेटबैक इफ पीपल वुड लाइक टू बिलीव इट, बट एज रणदीप जी सेड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स which it's the laws sought to do, at least the crucial ones, are either implemented at state level or there has been some work going on in creating a structure for them.
So time will tell when the outrage dies down and reality starts sinking in कि बाबा क्या हुआ क्या नहीं हुआ. उसके बाद we'll probably get some measured responses from the same guys who are outraging. एक verified handle है, उसने कहा this is the beginning of doom for BJP. भाई हो गया खत्म, आज फार्म लॉज आ गए तो मतलब इसके आगे अभी तो ऐसे भी रिस्पॉन्सेज आते हैं. अभी इनको क्या जवाब दें, बट आई डोंट नो. मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा पिन करो ट्वीट इसको और बाद में बात करते हैं भाई, बिकॉज यू डोंट इवन सी दीज आर गुड पीपल. आई एम नॉट सो हो सकता है इमोशनली वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए थे इसमें. सो अगेन इट्स नॉट पासिंग अ जजमेंट ऑन द पीपल हु आर रिएक्टिंग डिफरेंटली. अपनी अपनी सोच है, कुछ इंस्टेंटली आ जाती है, कुछ थोड़ी देर बाद आ जाती है. बट एक बात है, आज वीरदास बड़ा खुश हो गया होगा बिकॉज ऑल द आउटरेज इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिम. उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है आज. वीरदास बहुत खुश हो गया, उसको सब भूल गए. दादा, हम लोगों में से तो पॉलिटिशियन आप है, आप MP भी थे, तो मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे रणदीप जी ने भी बोला, समीर ने भी बोला है कि politics is something which we don't actually understand the way you will understand because you were a politician. So आप क्या मतलब आपके last words क्या होंगे इसमें? किसमें दीदी एक बार फिर बोलिए. मैं बोल रही हूँ जैसे आप पॉलिटिशियन थे, राइट? आप MP भी थे, तो आपका मतलब ये जो आउटरीच देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? मतलब आपका लास्ट स्टेटमेंट. नहीं, कुछ नहीं है, ये डाई डाउन हो जाएगा और इट्स नॉट अ स्पॉन्टेनियस आउटरीच. दो रकम के हैं, एक तो लोगों का सुना हुआ है, क्रिएटेड है, और दूसरा जैसे दैट वर्ड कि विड्रॉ करते हैं, उसको रिपील करते हैं, वो अचानक एक शॉक के जैसा आया. जब समझ में आ गया उसके बाद फिर बड़ा नॉर्मल. तो मेरे ख्याल से इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है. बट आई अगेन से वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ खालिस्तानीज एंड कांग्रेस. उनसे बच के रहिए, वो कोई भी ट्रबल किसी वक्त भी करा सकते हैं. अब नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं होनी है, अब पॉलिटिक्स सड़कों पे होगी, पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशन की होगी, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म की होगी, और होती आई भी कुछ महीनों से. तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए. सुरेंद्र जी ने बहुत सही कहा, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं. And creating anarchist situation in various parts and is definitely वो scorched earth के बारे में जो एक मैंने blog डाला था इसके पहले, where they will create trouble especially in states where they are in power. थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा. And of course you have to trust the central leadership to do what it has to do when it has to do it. And yeah, they can fall to any level. I agree. रणदीप जी, आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स. नहीं तो आई थिंक sorry, just to take it from where Sameer left, and Dada ने भी ये बोला. I think ईशा जी, we shouldn't worry too much about Twitter because politics Twitter पे नहीं होता है, politics ground level पे होता है. Twitter पे I think hardly 2 to 5% Indians, or probably even less. जस्ट वन क्वेश्चन. अभी किसी ने मुझे बोला, मीन्स आर्ग्यूमेंट हो गई, तो मुझे बोला कि अरे यूपी में भी तो हारने ही वाले थे. तो मैं बोली नहीं, जहां तक मेरा फीडबैक है यूपी में कोई चांस नहीं था हारने का. तो आप जब बोल रहे हैं ना, प्लीज उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा. तो मैं वही बोल रहा था कि उस पे I think as Sameer said, people are young, they are impetuous, they have been heavily invested. So है ना, वो right example करना चाहिए. जैसे समीर जी ने बोला, वो करने दीजिए. Let us be that. Try and understand why this has happened and guide people, direct people, because as both Sameer and Dada said, challenge Twitter पे नहीं है, challenge ground level पे है. You see, जो opposition parties हैं, unfortunately, especially कांग्रेस, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, कांग्रेस जो है अब एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पोजीशन पे जा रहा है. जो भी ये कर रहे हैं, तो जो भी कोई एंटी या एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट होगा,
they are going to incite those tests. They have to create an, I mean, leftist, unka natural inclination is towards creating an anarchy. अब वो आप देख लिया अरविंद केजरीवाल है, उसका भी यही है अप्रोच। ममता बनर्जी भी वही कर रही है। हालांकि उन्होंने लेफ्टिस्ट को हराया, बट उन्होंने लेफ्टिस्ट से भी ज्यादा लेफ्ट हो गई है वो। तो ये पॉलिटिक्स है ना, सॉरी जो एक्सट्रीम लेफ्ट। हाँ जी, एक मिनट। हाँ समीर, you wanted to say something? I wanted to say something because Randeep ji brought a very important point. Congress politics abhi leftism ki taraf chal raha hai because Congress is in a very unique and precarious position. They have never been in opposition at the center for such a long period of time. 7 years against a government which has its own majority without having to depend on allies. तो इनको ये एक बहुत ही मतलब क्लचिंग एट स्ट्रॉज वाली पोजीशन पे है, जिसकी वजह से उनका बेस्ट बेट, कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन द मास्टर ऑफ डर्टी ट्रिक्स। दे हैव हैड वेटरन्स इन दैट, दिग्विजय या हो या कोई और हो या जो भी है, दे हैव ऑलवेज बीन वो गोबेल्जियन टैक्टिक्स जो कहते हैं एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट दे हैव मास्टर्ड, बट दे हैव डन दैट यूजुअली फ्रॉम पोजीशंस ऑफ पावर। आज they are in the opposition. Is my connection gone? Were you able to hear me? No, now you're back. Yeah, we were able to hear you. Now you're back. Yeah, please. Yes. So they have been doing this from positions of power. Now they are in opposition. So और उनका फंडा बड़ा क्लियर है 2024 के लिए। They don't need to win and they know they will not win. They only need to ensure that Narendra Modi gets below 272. ये कांग्रेस की जीत हो गई। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, उनका गोल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को 272 के नीचे रिस्ट्रिक्ट करना है, and then expect that either it will be a weak ally propped government or they will give outside support to some hodgepodge and then pull it down and say देखो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस जो वो करने आए। So we have to be very clear, okay, they don't have to win to win. They just have to get that thing done. So उसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा हमको। Sameer, you will be very surprised to know that रणदीप जी का favorite quote गोबल्स का ही है। रणदीप जी ने बहुत बार ये कोट किया है। रणदीप जी प्लीज कंटिन्यू। इनका बहुत he always says that tell a lie and tell it again and again, it doesn't become a truth. Yes, Randeep ji, please. जो मैं कहना फाइनल में जो कहना चाह रहा था, जो समीर ने भी बोला है और दादा भी बोले हैं कि व्हाई इज कांग्रेस सो डेंजरस। मेरा जो मानना है, कांग्रेस इज डेंजरस बिकॉज उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, विच इज टू बी इन पावर बाय हुक और बाय क्रोक। उनकी कोई और आइडियोलॉजी नहीं है। तो अब उनको लग रहा है कि क्योंकि मोदी जी और जो बीजेपी गवर्नमेंट है तो राइटिस्ट गवर्नमेंट है, राइटिस्ट और सेंटर ऑफ राइट है, तो अब उनको क्या है टू काउंटर इट वो लेफ्ट को जा रहे हैं। तो एंड सी गिवन द फैक्ट दैट गांधी फैमिली जो है वो जनरली सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा को ही फॉलो कर रही है नेहरू के टाइम से। तो अब ये है कि उनकी प्रोजेनी जो है वो आगे एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे जा रहे हैं। अभी कन्हैया कुमार आ गए हैं अभी सब। तो ये आई थिंक ये भी एक फैक्टर रहा होगा कि मोदी जी दिमाग में ये डिसीजन के लिए, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज कि द होल ऑपोजिशन इज गोइंग सो एक्सट्रीम लेफ्ट that they don't know कि कब वो एंटी गवर्नमेंट है और कब वो एंटी इंडिया है। एंड इनफैक्ट आजकल तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स में दे आर एंटी इंडिया रादर देन एंटी गवर्नमेंट। तो ये भी एक जो करंट सिटिंग गवर्नमेंट है, चैलेंज तो उन्हीं को फेस करना है ना, सिटिंग गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट में है, जिसके पास अथॉरिटी है। तो आई थिंक, और ये चीज जो है ये बोल नहीं सकता कोई, सिटिंग गवर्नमेंट नहीं बोल सकती और बोलना भी नहीं, बट दे हैव टू मैनेज इट, दे हैव टू हैंडल इट। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक तरह से कहें कि कंस्ट्रेंट रहता है गवर्नमेंट का, वो जो बोल नहीं सकते हैं, बट दैट हैज टू बी मैनेज। सो ये जैसे समीर भी बोले और कि इस सिचुएशन में इवन मोर सो दैट जो
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और टेक ऑब्जेक्टिव एंड अ वेरी मैच्योर व्यू एंड लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ थिंग्स. Thank you so much. And yes, Samir, please. Closing. Yeah, please, Randeep ji. We should not forget the ultimate goal. The ultimate goal is to build a new India. और this is a war of idea of India. तो उसमें इस वॉर में एक दो बैटल हमें लूज करने पड़े, we should mind that. और ये कोई इतने बड़े बैटल भी नहीं है. There is not so much of stake in these. So इसी पे मैं एंड करता हूँ. प्लीज समीर जी बोलिए. हाँ, I think बस एक लिमिटेड पॉइंट था जो मतलब if perhaps through this video somewhere the voice goes forward, एक wish list है because for Modi ji and his cabinet, I believe that a couple of them need to really step up their performance and support him at these times, especially in crucial portfolios like आपकी जो लॉ मिनिस्ट्री है, INB है. अब मोदी जी ने खुद आज कहा कि शायद हमारा कम्युनिकेशन वीक रहा. So INB honestly needs to own up for this. We can always say that जो सोने की pretense कर रहा है उसको हम जगा नहीं सकते, but we have noticed that traditionally HRD, Education Ministry, INB and law have sort of been the Achilles heel of the NDA since inception in 2014. और इनको थोड़ा सा मतलब अभी आप देख रहे हैं overreach भी हो रहा है. I don't want to get more politically incorrect here, but they have to, these ministers really need to now put their weight behind Modi ji. 3-4 महीने हो गए नया cabinet swearing के बाद. Anyway, that's my point. Absolutely, I agree and I thank you that आप लोग सारे के सारे इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे साथ आ गए. ये वीडियो करने के पीछे मेरे 2-3 ही मोटिव थे. पहला, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. आप लोगों में से कितने लोग पब्लिक में जाके अपोलोजाइज करते हैं? अगर आपकी गलती रही तो करते हैं, आपकी गलती नहीं रही तो भी करते हैं. The Prime Minister of the country said, I apologize. Do not take it very easily. मजाक नहीं है. हम लोग अपने दोस्तों से भी सॉरी बोलने को, जब रियली कुछ गलत करते हैं तो सॉरी बोलने को हम लोग 10 बार सोचते हैं. हमारी ईगो सामने आती है. आज ये इतना आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपको बोला है कि आई एम सॉरी, तो आप लोग इस बारे में भी सोचिए. और वो जो बोलते हैं ना, जो लोग भी बोल रहे हैं ना मास्टर स्ट्रोक करके जो मजाक उड़ा रहे हैं, आप खुद के बारे में भी सोच लीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ईटन क्रो बिफोर दिस? आप लोगों ने इसके पहले भी आउटरीच किया, इसके पहले भी भला बुरा बोला, और हर बार बोलने के बाद जब मोदी जी का नेक्स्ट स्टेप देखा तो आप लोगों ने सब, जैसे हमने पहले ही बोला, क्रेडिट तो सबको चाहिए मगर कोई साथ में नहीं खड़ा होता है. आज आई एम ऑल्सो गोइंग टू से आई एम सॉरी दैट आई वॉज कैरिड अवे. And yeah, I think for the first time Samir also saw me doing something like this. I never do it, and I would actually like to thank each one of you personally. मतलब आज आप लोगों के कहने के ऊपर भी बाद में भी अगर लोग नहीं समझ सकते हैं एंड फिर भी वो लोग वही करते रहते हैं, तो सॉरी. हम लोग सॉरी है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है. समथिंग इज कुकिंग. बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत सारी बातें हो रही है जो हम लोगों को नहीं समझ में आता है. मगर यस, वी कैन रेन आवरसेल्फ इन एंड वी कैन स्टैंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. अगर मुश्किल के टाइम में खड़े नहीं हो सकते हो तो आप लोग कैसे सपोर्टर्स हो? और सबसे बड़ी बात जो सब लोगों ने बोला है, अगर देश को चेंज करना चाहते हो, डू यू रियली वांट टू गो बैक टू दोज एजेस जब डायनेस्टिक पीपल हु हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट टू डू? एंड मैंने ये भी एक जगह पे देखा है कि वो लोगों को लगता था कि अगर काम करेंगे ना तो लोगों के पास हमारी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, तो जानबूझ के काम नहीं करना, जानबूझ के लिटरेट नहीं रखना लोगों को, जानबूझ के लोगों को स्वावलंबी नहीं बनाना. ये सारा फेज हमने देखा है. आज आप आउटरीच करते करते वो सब भूल रहे हो. आप सब कुछ भूल जा रहे हो. सिर्फ आपका यू आर लिविंग इन द मोमेंट. Think deeply if you want your country to change. Think deeply if you want your country to go ahead. इतना ही कह के मैं आज नमस्कार बोलूंगी. Please think. Thank you Randeep ji, thank you Dada,
थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड दोस्तों, अगर अच्छा लगा, अगेन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।